اسلام کوٹ کے نواحی گاؤں کے قریب ٹریکٹر اور موٹر سائیکل میں تصادم، ایک نوجوان جاں بحق ہو گیا اور ایک زخمی۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو جائے حادثہ پہنچی اور لاش کو اسپتال منتقل کر دیا۔ ٹریکٹر ڈرائیور فرار ہو گیا۔ رینالہ خورد میں مویشی چور گینگ کے خلاف کامیاب کارروائی، پولیس نے انصری چور گینگ کا سرغنہ ساتھی سمیت گرفتار کر لیا۔ ملزمان سے لاکھوں روپے مالیت کا مال مسروقہ اور اسلحہ بھی برآمد۔ اوکاڑا تھانہ اے ڈویژن کے علاقہ شادمان کالونی میں طالب علم پر تشدد کا معاملہ، ڈی پی او کے نوٹس پر ملزم گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزم قاری نعیم نے سبق یاد نہ کرنے پر کم عمر بچے کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ ٹنڈو محمد خان میں ایس ایس پی حسیب جاوید سومار میمن کی قیادت میں پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں، ایک اشتہاری سمیت 12 ملزمان گرفتار، قبضے سے اسلحہ اور 3 گولیاں برآمد، جبکہ بھاری مقدار میں ہیروئن اور 4 شراب کی بوتلیں برآمد کی۔ رینالہ کوٹ کے تھانہ سٹی کی حدود اوان ٹاؤن میں چوری کی واردات، ڈاکو گھر کا صفایا کر گئے، 2 لاکھ مالیت کا سامان، 60,000 نقدی لے اڑے۔ پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کر دی۔ ماہ سیام میں زائد المیعاد کولڈ ڈرنکس کی روک تھام کے لیے پنجاب فوڈ اتھارٹی متحرک گڈا موڑ میں بوتلوں کے گودام پر کارروائی، 150 لیٹر زائد المیعاد کولڈ ڈرنکس تلف کرتی اسٹور مالک کو بھاری جرمانہ عائد۔ اور سیالکوٹ میں غیر قانونی منی پیٹرول پمپس کے خلاف ضلع انتظامیہ کا ایکشن، درجنوں مشینیں ضبط کر لی گئیں، دکانیں سیل۔ چیف آفیسر حافظ ذکریہ اقبال نے کہا کہ انسانی جانوں سے کھیلنے کی ہرگز کسی کو اجازت نہیں دے سکتے۔ السلام علیکم، ٹی وی ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اور میں ہوں نزہت نور۔ علاقائی بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کر لیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ اسلام کوٹ کے نواحی گاؤں کے قریب ٹریکٹر اور موٹر سائیکل میں تصادم ہو گیا، ایک نوجوان جاں بحق ہو گیا ہے اور ایک زخمی۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو جائے حادثہ پہنچی اور لاش کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اہل خانہ کے مطابق متوفی نوجوان کی شادی کی تاریخ بھی طے ہو چکی تھی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ حادثے کا سبب بننے والا ٹریکٹر تحویل میں لے لیا گیا ہے، جبکہ ڈرائیور فرار ہو گیا۔ وہاں رینالہ خورد میں مویشی چور گینگ کے خلاف کامیاب کارروائی، تھانہ صدر پولیس نے انصری چور گینگ کے سرغنہ کو ساتھی سمیت گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان سے لاکھوں روپے مالیت کا مال مسروقہ اور اسلحہ بھی برآمد ہوا۔ ملزمان کا دوران تفتیش متعدد وارداتوں کا انکشاف۔ ڈی پی او اوکاڑا ڈاکٹر اسد اعجاز ملہی کا کہنا تھا کہ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر سختی سے عمل درآمد جاری رہے گا۔ اوکاڑا تھانہ اے ڈویژن کے علاقہ شادمان کالونی میں طالب علم پر تشدد کا معاملہ پیش آیا ہے، ڈی پی او کے نوٹس پر ملزم گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم قاری نعیم نے سبق یاد نہ کرنے پر کم عمر بچے کو تشدد کا نشانہ بنایا، 1 گھنٹے کے اندر ملزم کو گرفتار کیا گیا، مزید تفتیش جاری ہے۔ ڈی پی او کا کہنا ہے کہ بچوں کے ساتھ تشدد میں ملوث ملزمان کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ ٹنڈو محمد خان میں ایس ایس پی حسیب جاوید سومار میمن کی قیادت میں پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں، ایک اشتہاری سمیت 12 ملزمان گرفتار کر لیے۔ پولیس کے مطابق ملزمان کے قبضہ سے اسلحہ اور 3 گولیاں برآمد کی گئیں، جبکہ بھاری مقدار میں ہیروئن اور 4 شراب کی بوتلیں برآمد کی گئیں۔ ملزمان سے مزید تفتیش کا آغاز بھی کر دیا گیا۔ ناصرین، کاہنہ میں پولیس کی کامیاب کارروائی، تیزاب کرتی واقعے کی مرکزی ملزمہ کو گرفتار کر لیا۔ کاہنہ پولیس نے جدید ٹیکنالوجی سے ملزمہ کو غلام حسین کالونی سے ٹریس کیا ہے۔ ایس پی ماڈل ٹاؤن شہر بانو نقوی نے ملزمہ کی گرفتاری کے لیے اسپیشل ٹیم تشکیل دی تھی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ متاثرہ شخص اور ملزمہ کے مابین پرانی دوستی تھی۔ متاثرہ شخص سفیان نے چند روز قبل دیگر خاتون سے شادی کر لی، جس کا ملزمہ کو رنج تھا۔ ملزمہ روبینہ بی بی نے 30 سالہ سفیان کو بہانے سے گھر بلا کر تیزاب پھینکا۔ تیزاب سے متاثرہ شخص کے کپڑے اور جسم کے کچھ حصے جھلس گئے تھے، جبکہ ملزمہ سے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے۔
उधर रेनाला कोट के थाना सिटी की हदूद अवान टाउन में चोरी की वारदात हुई है। डाकू घर का सफाया कर गए। मुतासरीन के मुताबिक चोर घर का ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुए और 2 लाख से ज्यादा रुपए मालियत का सामान और 60,000 रुपए नकदी ले उड़े। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। मीरपुर खास के नवाही गांव में 3 साला बच्चा सीवरेज के खुले मैनहोल में गिरकर जान की बासी हार गया। कोई अवामी नुमाइंदा वहां नहीं पहुंचा, लेकिन उलमा एक्शन कमेटी के रहनुमा मौलाना हफीजुर रहमान वहां पहुंच गए। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद नुमाइंदा राजा राशिद से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं मीरपुर खास के इलाके पुसना कॉलोनी में, जहां पर एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है। एक 3 साल का मासूम बच्चा रिहायशी कॉलोनी के एक खाली प्लाट में गटर के जमा पानी में गिरकर जो है डूबकर जहां बहक हो गया है। इस हवाले से यहाँ पर जो है ताज़ियत के लिए उलमा एक्शन कमेटी के रहनुमा हाफिज रहमान फैज साहब भी पहुँचे हैं। आइए उनसे बात करें, उनका क्या कहना है इस हवाले से। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या है। ये ज़हीर भाई का 3 साल का बेटा, सिर्फ इसकी वजह ये है कि हमारे बल्दिया की नाअहली है। यहाँ कोई नालों का सिस्टम नहीं है, कोई सीवरेज का सिस्टम नहीं है। गंदा पानी कहाँ जाना है, किधर पहुँचना है, किसी को कुछ नहीं पता। प्रोजेक्ट हैं, जनरेटर है, डीजल है, मशीनें हैं, सारे पैसे ये लोग खा जाते हैं। हम के बात करते हैं तो कहते हैं ये पता नहीं क्या इनका मौलवियों का मसला है। भाई हम भाड़ में जाए, हमारी ज़ात को आप दफ़ा करो। आप इस लोगों को देखो ना, ये गरीब आदमी मजदूरी करता है, खुददार किस्म का बंदा है, किसी से ये मांगता नहीं है। ये अपने बच्चे की रोज़ी के लिए निकले तो पीछे आप देखो इसका रास्ता, ये सिर्फ इसलिए कि असल जो नालियाँ हैं जहाँ से पानी गुजरना है उधर से पानी नहीं गुजर रहा, और पानी लोगों के घरों से गुजर रहा है, प्लाटों में से गुजर रहा है, अस्पतालों के नीचे से गुजर रहा है। तो इससे हादसा होंगे। बस अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे सिंध के ऊपर रहम करे और इन यजीदों से अल्लाह ताला हमारी जान छुड़ाए। कोई ऐसे लोग अल्लाह ताला लेके आए जो हमारे इस शहर को चमकाएं। बाकी जो इसमें मुलविस है, इंशाअल्लाह ताला वो दुनिया में भी ख्वार होगा, वो आखिरत में भी ख्वार होगा। जी, आपने सुना है कि इनका कहना है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जो है लापरवाही और गलत प्लानिंग की वजह से जो है रिहायशी प्लाटों में जो पानी जमा हो जाता है और फिर वहाँ पे जो है मासूम बच्चे जो है डूब के जान बहक हो जाते हैं और ऐसे वाक़े पेश आते हैं। जी। उधर खानेवाल में थाना सिटी की हदूद फार्म रोड पर 2 ग्रुपों रहमानी बरादरी और मलिक बरादरी के दरमियान डंडों, सोटों और ईंटों के आजादाना इस्तेमाल से खूनी तसादुम हो गया, जिसके नतीजे में मुतादिद अफराद जख्मी हुए हैं। रिपोर्ट करेंगे राशिद रहमानी। थाना सिटी की हदूद फार्म रोड पर रहमानी बरादरी और मलक बरादरी के दरमियान खूनी तसादम दुकानों की खरीदारी के तनाजा पर शुरू हुआ। दोनों ग्रुपों की जानिब से डंडों, सोटों और ईंटों का आजादाना इस्तेमाल किया गया, जिसके बायस दोनों अतराफ के 8 से 10 अफराद शदीद जख्मी हो गए। SHO थाना सिटी पुलिस की नफरी के हमरा मौका पर पहुंचे और हालात को कंट्रोल करने की कोशिश की। इसी दौरान रेस्क्यू की गाड़ी के पहुंचने पर एक बार फिर तसादम शिद्दत अख्तियार कर गया। हमने 1.25 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ली थी माजिद, आबिद, यामिन वगैरह और से, और उनको हमने 60 लाख रुपए भी दिए हैं। उन्होंने हमें कुछ हिस्से की रजिस्ट्री भी कराई है। फिर वो बेईमान हो गए और वो अदालत चला गया मामला। उसके बाद जो है ना जज साहब ने दोनों पार्टियों को पाबंद कर दिया, भाई जो है ना आप इसमें कोई इसमें नहीं इन्वॉल्व होगा। वो 25-30 लोग थे। हम उनके पास गए, पूछे तो उन्होंने छत से उनकी औरतों ने ईंटें और रोडों की बरसात की है, और जो माजिद, यामिन, आबिद वगैरह ने राड हमें मारा सर पे। हमें DPO साहब से और SHO से है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। भाई साहब ने, इमरान ने फ़ोन करा, यार हमारे साथ ज्यादती हो रही है, इधर जो था ना जी हमारी दुकानों पे कब्जा कर लिया है। तो हम उन्हें आगे देखा करे तो जो था ना 25-30 लोग वो बैठे करे थे, ताले तोड़ के अंदर बैठे कर रहे थे जो था ना जी। उनको जो था ना जी वो हम 10-15 बंदे जो था ना जी पूछा करे अभी क्या हमारा, उन्होंने डरे कि ऊपर से ईंट रोडे जो राड जो है ना शुरू कर दिया हमारे ऊपर। रेस्क्यू और पुलिस एहलकारों ने जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बताया जाता है कि दोनों ग्रुपों के दरमियान दुकानों का तनाजा काफी अरसे से चला आ रहा था। कैमरा टीम के साथ राशिद रहमानी, TV टुडे, खानेवाल। महकमा जंगलात का डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जानवरों का बाड़ा बन चुका है और मुलाजमीन वजारत खजाना को हर माह घर बैठे तनख्वाहों का चूना लगा रहे हैं। ऑफिस में कामकाज से आने वाले साइल घंटों इंतजार के बाद मायूस लौट जाते हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं बख्तियार सुखेरा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकपतन के डिस्ट्रिक्ट ऑफिस महकमा जंगलात में। ये जो महकमा जंगलात का ऑफिस है अरसा दराज से बंद पड़ा है और मनो मिट्टी जो है इनके दरवाज़ों और तालों के ऊपर लगी हुई है। ऐसे नज़र आता है जैसे ये सालों से बंद पड़ा है
اور ذرائع کے مطابق جب بھی یہاں پر کوئی سائل آتا ہے تو یہ تالے ہی نظر آتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ہم فیلڈ میں موجود ہیں. تو یہ جو جتنے بھی افسران ہیں یہاں پر ڈسٹرکٹ آفس میں یہ محکمہ خزانہ پر بوجھ ہیں. ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ آئے روز سڑک کنارے اور راجبہ اور اس کے ساتھ ساتھ نہر کے کنارے جتنی سرکاری لکڑی ہے ان کی چوری کی وارداتیں بھی رپورٹ ہو رہی ہیں اور یہ محکمہ جنگلات کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے. پاک پتن کی عوام جو ہے انہوں نے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف، وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف، کمشنر ساہیوال اور ڈپٹی کمشنر پاک پتن سے مطالبہ کیا ہے کہ محکمہ جنگلات کے خلاف نوٹس لے کر جو یہاں پر موجود عملہ ہے اس کے ساتھ قانونی کارروائی کی جائے اور غفلت برتنے پر ان کو سخت سے سخت سزا دلوائی جائے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ بختیار سکھیرا، ٹی وی ٹوڈے، پاک پتن. ناظرین، دوسری جانب کاہنا کے علاقے جھیڈو گاؤں میں منشیات فروشوں نے منشیات کا کاروبار بند کر دیا اور شریف شہریوں کی زندگی گزارنے کا اعلان کر دیا ہے، جبکہ دلاور حسین اور اس کے بھائی نے اہلیان علاقہ کی موجودگی میں مسجد میں قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر اس مکروہ دھندے سے توبہ کر لی ہے. مزید کیا تفصیلات ہیں اپڈیٹ کریں گے کلیم اللہ راجپوت. جی بالکل، اس وقت موجود ہوں تھانہ کاہنا کی حدود جھیڈو گاؤں میں. بدنام زمانہ منشیات فروش دو سگے بھائیوں نے جو ہے منشیات جیسے مکروہ دھندے سے توبہ کر لی ہے. بات کریں گے. کیا نام ہے؟ دلاور حسین. 3 سال ہو گئے جناب مکروہ دھندے سے توبہ کر لی. جناب ساڈے نال اہل محلہ نے اگر ساڈے کوئی خریداری یا کوئی ثبوت ملتا ہے نہیں، اگر کوئی پروف تہاڈے خلاف مل جاندا ہے ہاں جی تے سانو جو مرضی قانون یہ ساڈے خلاف نے سانو قانون جو مرضی سزا دے سکدا ہے. مہربانی ساڈا اندے نال تے کوئی لینک نہیں ہےگا. 3 سال ہو گئے سانو کام چھڈے نو تے مہربانی مریم نواز کے اپیل ہے سانو تنگ نہ کیتا جاوے. ہاں جی شریف شہری. ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਬੱਚੇ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਛੱਡਿਆ ਨੂੰ ਤੇ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸੀ ਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਹਲਫ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਛੱਡਿਆ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ. ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ. لہذا سے معافی چاہوں. یہ جی اہلیان علاقہ کا بیان بھی آپ نے سنا. ان دونوں بھائیوں نے سچے دل سے توبہ کر لی ہے. ان کا یہ کہنا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی درخواست ہے کہ ہمارے خلاف جو ہے وہ قانونی کارروائی بند کی جائے. 3 سال ہو گئے ہمیں منشیات جیسے مکروہ دھندے سے توبہ کیے اور پولیس کی جانب سے ہمیں تنگ نہ کیا جائے. جی. اور ماہ سیام میں زائد المیعاد کولڈ ڈرنکس کی روک تھام کے لیے پنجاب فوڈ اتھارٹی متحرک گڑھا موڑ میں بوتلوں کے گودام پر کارروائی کی گئی. 150 لیٹر زائد المیعاد کولڈ ڈرنکس تلف کر دیں. ترجمان فوڈ اتھارٹی کے مطابق گڑھا موڑ میں کولڈ ڈرنکس کے سٹور پر کارروائی عمل میں لائی گئی ہے. ڈی جی فوڈ اتھارٹی کا کہنا تھا ایکسپائری سٹاک کو فریش سٹاک کے ساتھ مکس کر کے سٹور کیا گیا تھا. مضر صحت مشروبات مختلف کریانہ سٹورز اور ڈرنک کارنرز پر سپلائی کی جانی تھی. ناظرین، بچوں کی خوراک میں ملاوٹ اور جال سازی کا بڑا منصوبہ ناکام ہو گیا. پنجاب فوڈ اتھارٹی کا بستی ارائیاں والی پل کورے والی کبیر والا میں کلفی پروڈکشن یونٹ پر چھاپا مارا. 92,000 کے قریب غیر معیاری کلفیاں طلب کر دی گئیں. ترجمان فوڈ اتھارٹی کے مطابق معروف برانڈز کے نام سے بڑے پیمانے پر ملاوٹی کلفیاں تیار کر کے مارکیٹ میں فروخت کی جا رہی تھیں. ٹیسٹ کے دوران کلفیوں میں غیر معیاری اجزاء کی ملاوٹ پائی گئی. ڈی جی فوڈ اتھارٹی کا کہنا تھا کہ بچوں کی پسندیدہ اشیاء میں جال سازی کرنے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے. اور نشر و فیروز میں نجی ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے رمضان المبارک کی فلاحی مہم کے تحت قریباً 200 مستحق افراد میں راشن بیگ تقسیم کیے گئے. رمضان راشن بیگ ڈسٹریبیوشن پروگرام کے تحت ضرورت مند اور غریب خاندانوں تک اشیاء خورنوش پہنچائی گئی ہیں تاکہ وہ مقدس مہینے میں بآسانی روزے رکھ سکیں. تقریب کے دوران تنظیم کے رضاکاروں نے بھرپور انتظامات سنبھالے اور مستحقین کی باعزت انداز میں مدد کی. اس موقع پر تنظیم کے نمائندگان محمد علی خانزادہ، ایڈوکیٹ عبدالقادر خانزادہ کا کہنا تھا کہ رمضان المبارک رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے اور ادارے کا مقصد معاشرے کے کمزور طبقے کی مدد کر کے ان کی مشکلات میں کمی لانا ہے. انہوں نے مزید کہا مستقبل میں بھی فلاحی سرگرمیاں جاری رکھی جائیں گی. پاک پتن تھانہ چک پیدی پولیس اور ڈاکو کے درمیان مقابلہ. خطرناک ڈاکو اظہر عرف اظہری میانہ زخمی حالت میں گرفتار ہو گیا. ساتھ ہی عاصم اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہو گیا. پولیس کے مطابق گرفتار ڈاکو ڈکیتی کی درجنوں وارداتوں میں ملوث نکلا.
फरार साथी आसिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। अहले इलाका ने बदनाम जमाना डाकू की गिरफ्तारी पर SHO मुनीर बाबर और उसकी पूरी टीम को कामयाब कार्रवाई पर खराज तहसीन पेश किया। RPO उस्मान अकरम गोंदल ने पुलिस स्टेशन अब्दुल हकीम का दौरा किया। जी हां, जहां पर उन्होंने हवालात, बैरिक्स, फ्रंट डेस्क, मुहर्रिर ऑफिस और सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया, जबकि ऑनलाइन रिकॉर्ड और थाना रिकॉर्ड की पड़ताल भी की। जबकि थाना अब्दुल हकीम में RPO मुल्तान ने DPO मोहम्मद आबिद के हमरा खुली कचहरी का इनेकाद किया, जिसमें SP इन्वेस्टिगेशन, DSP और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। RPO ने शहरियों के मसाइल बागौर सुने, मौका पर अहकामात जारी किए और फीडबैक लिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन और IG पंजाब के अहकामात के मुताबिक अवामी रिलीफ अव्वलीन तरजीह है। पुलिस रवैये में बेहतरी पर खुसूसी फोकस है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 शहीद बेनजीराबाद सदाम हुसैन मेमन की जेर सदारत कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम के इंतजामात के मुतालिक जायजा इजलास हुआ। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 शहीद बेनजीराबाद सदाम हुसैन मेमन की जेर सदारत 13 अप्रैल से शुरू होने वाली कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम के इंतजामात का जायजा लेने के लिए एक इजलास आज DC ऑफिस के दरबार हॉल में मुनक्किद हुआ। इजलास से खिताब करते हुए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सदाम हुसैन ने कहा कि पोलियो का मुकम्मल खात्मा कौमी जिम्मेदारी है और 5 साल तक की उम्र के हर बच्चे को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाना जिले इंतजामिया की अवलीन तरजीह है। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की कि मुहिम के दौरान कोई भी बच्चा पोलियो वैक्सीन से महरूम न रहे और 100% हदफ हासिल करने के लिए मरबूत हिकमत अमली इख्तियार की जाए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने महकमा सेहत के अफसरान पर जोर दिया कि वो आइंदा मुनक्किद होने वाली कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए बेहतर माइक्रो प्लान टीमों की तरबियत पर खसूसी तवज्जो दें। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने पुलिस के अफसरान को कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान टीमों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने और पोलियो ट्रांजिट और फिक्स पॉइंट्स पर पुलिस एहलकार तैनात करने की हिदायत जारी की। मंडी उस्मानवाला में जायदाद के तनाज़े पर भाइयों ने मुबैना तौर पर फायरिंग करके अपनी सगी बेवा बहन को जख्मी कर दिया। पुलिस के मुताबिक जख्मी खातून ज़ीनत बीबी, जो 4 बच्चों की मां और इलाहाबाद की रिहायशी है, अपने भाइयों से विरासती हिस्सा लेने आई थी। इल्जाम है कि हिस्सा तलब करने पर उनके भाई अब्दुल कयूम और परवेज ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गई। नाज़रीन, मंशियात के खिलाफ जारी मुहिम के दौरान थाना मामू कांजन पुलिस ने मुबैना तौर पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उसके कब्जा से 1270 ग्राम हेरोइन बरामद होने का दावा किया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों मुल्जिमान के खिलाफ इंसदादे मंशियात एक्ट के तहत अलग अलग मुकदमा दर्ज करके उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां से जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। कमालिया में असिस्टेंट कमिश्नर इरम शहजादी ने ट्रांसपोर्टर्स के इजलास की सदारत की, जिसमें सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी टोबा टेक सिंह और दीगर मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर ने इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि शहर में हैवी ट्रैफिक से दाखिले पर आयद पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि गैर कानूनी वैगन और बस स्टैंड किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और तमाम गाड़ियां जनरल बस स्टैंड से ही ऑपरेट करेंगी, ताकि शहरियों को सहूलत मुयस्सर आए और ट्रैफिक मसाइल पर काबू पाया जा सके। तो उधर पसरूर में पंजाब पुलिस की जानिब से मुनक्किद की जाने वाली खुली कचहरियों पर शहरियों ने तहफ्फुज़ात का इजहार किया है। शहरियों का कहना है कि खुली कचहरियों का मकसद अवामी मसाइल का हल होना चाहिए, ताहम उनके बकौल ये सिलसिला महज रस्मी कार्रवाई तक महदूद है। बाज़ अफराद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पहले साइलिन को थानों में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और फिर खुली कचहरियों में भी मसाइल के हल की बजाय मजीद परेशानी उठाना पड़ती है। नाज़रीन, ईरान के मुसलमानों से इजहार यकजहती और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पर एहतजाजी रैली निकाली गई। मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा है कि आज का एहतजाज इस बात का सबूत है कि चीचावतनी के अवाम मजलूम मुसलमानों के साथ खड़े हैं। रैली के इख्तिताम पर शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई के दर्जात की बुलंदी और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआ की गई। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर की वालिदा के इंतकाल पर DC ऑफिस के कमेटी रूम में ताज़ियती रेफरेंस मुनक्किद किया गया। इजलास का आगाज तलावत कलाम पाक से हुआ। मरहुमा के साले सवाब के लिए फातिह खानी की गई और दर्जात की बुलंदी के लिए खसूसी दुआ भी की गई। अफसरान ने डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार करते हुए दुख की इस घड़ी में साथ खड़े रहने के अज़म का इयादा किया।
टंडोला यार में डिप्टी कमिश्नर और चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट पोलियो कमेटी की जेर सदारत इजलास डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक्किद हुआ। मुतल्लिका अफसरान ने ब्रीफिंग देते हुए बताया है कि टीम्स की तश्कील मुकम्मल कर ली गई है और हाई रिस्क यूनियन काउंसिल्स पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने उलमा, उस्ताद, समाजी रहनुमाओं और मीडिया के किरदार को अहम करार देते हुए कहा कि किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और तमाम अफसरान फील्ड में मुतहर्रिक रहें। करमपुर के करीब तहसील तंगवानी के नवाही गांव रसूलाबाद में खसरा के बायस 4 साला बच्चा जाँ बहक हो गया। मकामी अफराद ने इल्जाम आयद किया कि महकमा सेहत की जानिब से बर वक्त वैक्सीनेशन टीम न भेजे जाने के बायस मर्ज में इजाफा हो रहा है। गांव वालों ने डीसी कश्मोर से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर वैक्सीनेशन टीम रवाना की जाए ताकि मजीद कीमती जानों के ज़िया से बचा जा सके। सियालकोट में सेवा फाउंडेशन पाकिस्तान की जानिब से अलखिदमत स्कूल सिस्टम के 169 मुस्तक तलबा और तालिबात में ईद तहाइफ जबकि उनकी फैमिलीज में रमजान राशन बैग्स तकसीम किए गए। जी हाँ, उन्होंने मजीद कहा है कि बच्चों के साथ ईद की खुशियां शेयर करना बाइस मुसर्रत है और उम्मीद है कि ये तहाइफ उनके एतमाद में इजाफा करेंगे। इस मौका पर प्रोजेक्ट मैनेजर मुबीना नकवी भी मौजूद थी। टंडू मोहम्मद खान के इलाके में 200 से ज्यादा मुस्तहिक खानदानों में राशन बैग्स तकसीम किए गए हैं। तफसीलात जानते हैं जिशान खान की इस रिपोर्ट में। हर साल की तरह इस साल भी टंडू मोहम्मद खान में क्यूनेट कंपनी की जानिब से 200 मुस्तहिक खानदान में राशन बैग तकसीम किए गए, जिस सईदपुर टक्कर में सैयद जुल्फिकार अली शाह की रेशगाह पर सैयद जुल्फिकार शाह ने मीडिया से बातचीत करते हुए, यह मेरा दोस्त है तारिक साहब, तारिक दुबई का अरब है और वो हमेशा मेहरबानी करता है क्यूनेट कंपनी की तरफ से राशन भेजते हैं कि हमारे हारियों में और बंदों गरीब जो लोग हैं गाँव वाले उनमें बांटें और इंशाल्लाह जो गरीब आदमी होंगे वो उनको भी दुआएं देंगे और उनके घर में भी राशन जाएगा तो कुछ सिंध की पाकिस्तान की वो मदद करते हैं गरीबों की और पूरे पाकिस्तान में बांटते हैं तो उनको खुदा सेहत देगा और कंपनी को आगे बढ़ाएगा। आपने सुना जुल्फिकार शाह का यही कहना था क्यूनेट कंपनी की ताउन से 200 खानदान में जो है राशन बैग तकसीम किए गए हैं। कैमरा टीम के साथ टीवी टुडे जिशान खान, टंडो मोहम्मद खान। वज़ीर आला पंजाब के वीएन और डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहिब की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सांगला हिल की जेर निगरानी तहसील भर में रमजान निगहबान कार्ड्स की तकसीम मुस्तकीन की दहलीज तक फराहमी का सिलसिला जारी है। तफसीलात बता रही हैं जुल्फिकार अली। पंजाब के विजन और डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सांगला उसामा मानद की जेर निगरानी जो है रमजान निगहबान कार्ड की हकदारों की दहलीज तक फराहमी का जो सिलसिला जारी है। तो मेरे साथ इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर सांगला उसामा मानद मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इस हवाले से इनका क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत के मुताबिक तकरीबन 45,000 लोगों को डिस्ट्रिक्ट ननकाना में जो रमज़ान निगहबान कार्ड मिल रहे हैं, उसमें से तकरीबन 6 से 7,000 जो है कार्ड हमने तहसील सांगला हिल में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जितने हमें कार्ड मौसूल हुए हैं उनका हमने 90% जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और तकरीबन 80% से ज़्यादा लोगों ने पैसे भी विड्रॉ करवा लिए। इसके अलावा भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो के हिदायत के मुताबिक रमज़ान दस्तरखान भी चल रहे हैं, सहूलत बाज़ार भी लगाए गए हैं। मज़ीद जो भी लोग हमारे पास आते हैं कि जिसका कोई सर्वे रह गया हो, कोई अगर हकदार है उसका सर्वे रह गया हो, मेरे पास जो आता है उसका फौरी तौर पे सर्वे करवा के इस लिस्ट में नाम शामिल करवाया जाता है और उसको फौरी तौर पर कार्ड भी इशू करवाया जाता है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि असिस्टेंट कमिश्नर सांगला उसामा मानद का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब के इस फलाही इक़दाम के तहत जो है ज़िला के तमाम अफसरान जो मतहरक हैं। रमज़ान निगहबान कार्ड का मकसद गरीब और मतवस्त तबके को महंगाई के असरात से बचाना और इन्हें अशिया ज़रूरत की फराहमी में आसानी पैदा करना है। जी आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे ओकाड़ा में डीपीओ डॉक्टर असद एजाज ने थाना गोगीरा का अचानक दौरा किया है और सदर सर्कल में थाना गोगीरा का तफसीली मुआयना किया। इस मौका पर डीपीओ ने फ्रंट डेस्क, रिकॉर्ड, कम्युनिकेटिंग मशीन, हवालात, इमारत और सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया, जबकि तफ्तीशी अफसरान को इश्तिहारी और संगीन मुकदमात के मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दिया। डीपीओ का कहना था कि थानों के दौरों का मकसद पुलिस कारकर्दगी को जांचना है।
डिप्टी कमिश्नर सियालकोट शबाज खर अली और महकमा सिविल डिफेंस के जिला ऑफिसर मलिक खालिद महमूद शहजाद अवान की खसूसी हिदायत पर गैर कानूनी तरीके से चलने वाले मिनी पेट्रोल पंप के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया गया। कार्रवाइयों के दौरान दर्जनों मशीनों को जब्त कर लिया गया है, उनकी दुकानों को सील कर दिया गया। चीफ ऑफिसर हाफिज जिक्रिया इकबाल का कहना था कि इंसानी जानों से खेलने की हरगिज किसी को इजाजत नहीं दे सकते। मिनी पेट्रोल पंप्स मालिकान कितने ही बाअसर क्यों ना हो, उनके खिलाफ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। वाज़ेह रहे कि महकमा सिविल डिफेंस सियालकोट गैर कानूनी तरीके से चलने वाले मिनी पेट्रोल पंप्स और गैस रिफिलिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां करने पर पंजाब भर में पहली पोजीशन पर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अवाम दोस्त विजन के तहत रमजान उल मुबारक में गरीब और मुतवस्त तबके को रिलीफ फराहम करने के लिए जिला कोटद्दू में मुख्तलिफ मकामात पर निगहबान रमजान बाजार लगाए गए हैं, जहां खाने पीने की 100 से ज़ायद मियारी अशिया 20% तक कम कीमत पर फरोख्त की जा रही हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं कोटद्दू से हमारे नुमाइंदा सरदार बिलाल की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर रमजानुल मुबारक में लोगों को अशियाए खुर्दोनोश की सस्ते दामों फराहमी को यकीनी बनाने के लिए जिले इंतजामिया की तरफ से जिला भर में मुख्तलिफ मकामात पर निगहबान रमजान बाजार लगाए गए हैं, जहाँ रोजमर्रा इस्तेमाल की मुख्तलिफ मियारी अशिया 20% तक कम कीमत पर फरोख्त की जा रही है। निगहबान रमजान बाजार में 10 किलो आटे का थैला 50 रुपए कम कीमत के साथ 850 रुपए, चीनी 15 रुपए कम कीमत के साथ 140 रुपए फी किलो, जबकि मियारी गोश्त आम बाजार से 100 रुपए फी किलो कम कीमत पर फरोख्त किया जा रहा है। सब ने अपनी वज़ीर आला पे एतमाद किया और उनकी जो 2 साल की परफॉर्मेंस है और जिस तरह से 2 साल से उन्होंने जांच फिशानी से अपने सूबे की तरक्की के लिए एक एक जिले में खुशहाली पहुंचाने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम उठाए। लोगों की बड़ी तादाद निगहबान रमजान बाजार में अपनी जरूरियात के मुताबिक ताज़ा फल, सब्जियां, मशरूबात, घी, मिसाला जात समेत दीगर अशिया सस्ते दामों खरीद रही है। बहुत अच्छा बाजार है, बहुत सस्ता बाजार है, गरीबों के लिए अच्छा सहूलत मिली है। मरियम नवाज बाजार है, असां सस्तियां चीज़ां कीतियां बहुत सस्तियां मिलियन ते मरियम नवाज दा शुक्रगुजार हैं। माह मुकद्दस में लोगों को मियारी अशिया की सस्ते दामों बासानी फराहमी को यकीनी बनाने के लिए निगहबान रमजान बाजार हुकूमत पंजाब का ऐसा इक़दाम है। रमजानुल मुबारक में अवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करने के लिए निगहबान रमजान बाजारों का क़याम वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अवाम दोस्त विजन का अमली सबूत है। सरदार बिलाल चांडियो, TV टुडे न्यूज़, डिस्ट्रिक्ट कोट। और नाज़रीन, अर्ज़ पाकिस्तान में अली मस्जिद की तामीर करवाओ। ये मस्जिद उसी जगह तामीर की गई है जब किसी जगह या किसी मकाम को अगर मुकद्दस ज़ात से निस्बत खास हो जाए, वो चीज़ मुकद्दस और मकबूल हो जाती है। यहाँ अल्लाह ताला की खास बरकत नासिल होती हैं। लोग यहाँ नमाज पढ़कर अल्लाह की रहमत पाते हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ राना सुहेल इकबाल से। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ सही हॉल में सईदा सईद अख्तर जिलानी साहबा के मज़ार शरीफ पर, जिनके बारे में मशहूर है इन्होंने 17 साल मदीना शरीफ में तवील क़याम किया। इस दौरान एक दिन उन्होंने रोज़ा रसूल पर हाज़िरी दी, वहाँ पे इशारा पाया कि अर्ज़ पाकिस्तान में जाओ, वहाँ पर एक मस्जिद तमीर करवाओ। तो मेरे पास यहाँ पे उनके मरीज़ यहाँ पे मौजूद है, उनसे जानते हैं इसके पस मंज़र में अब क्या हकीकत है। मदीना बाग से आपको रोज़ा रसूल से इशारा हुआ कि तुम बेटा अख्तर तुम पाकिस्तान चले जाओ और वहाँ जाकर मस्जिद अली तमीर करो। अर्ज़ पाकिस्तान के जिस मकाम की तरफ इशारा हुआ, ये मस्जिद ठीक उसी जगह पर तमीरी। यहाँ से 3 जगह से मिट्टी गई है, आरहवाला, पाकपतन, साहिवाल, 3 जगह से मिट्टी गई है और साहिवाल की मिट्टी सेलेक्ट हुई है। वहाँ पे उन्होंने ये मिट्टी सेलेक्ट की है और उन्होंने कहा कि भैया ये जगह ख़रीद ली जाए। ये जगह ख़रीदी है उन्होंने, वो सन 1968 में यहाँ आए हैं और 68 से लेकर 71 तक उन्होंने ये मस्जिद तमीर कराई है और अपना जो रहायश के लिए कोठी बनाई है और अपने यहाँ पे और औरतें यहाँ आती थी और यहाँ से फैज़ याब होने के लिए, और वो इन सब को बताते थे कि भाई किसी ने आके अपनी फरियाद बताई तो उसने कहा ये बेटा ये तुम पढ़ो, अल्लाह की ज़ात आप पर फजल और करम कर देगी। जी यही वो मस्जिद है जो कि एग्जैक्ट जगह सहीवाल में बनाई गई है। तो माई साहिबा यहाँ पे तशरीफ़ ले आई, जहाँ पर उनके पास औरतें यहाँ पर आती रहीं, उन्हें पढ़ने के लिए बताती रही, इस पर अमल करें और इससे बरकत आपको हासिल होगी। जी
तो दूसरी जानिब हैदराबाद के इलाके होस्टे में कार ने चिंची रिक्शे को रौंद डाला। हादसे के नतीजे में रिक्शा ड्राइवर शख्स जाँ बहक जबकि 6 जख्मी हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक जाँ बहक होने वाले की शनाख्त आलनी होस्ट्री के रिहायशी गुलहसन सोलंगी के नाम से हुई, जबकि लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नासिन लुडन में निजी स्कूल में रिजल्ट डे के मौका पर तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें तलबा तालिबात को इनामात से नवाजा गया। उस्ताज़ कराम की अनथक मेहनत को खराज तहसीन पेश किया गया है। तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक से हुआ, जिसके बाद नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा और तालिबात को इनामात से नवाजा गया। मुकर्ररीन ने कहा है कि कामयाब नताइज इस बात का सबूत हैं कि इदारा मेयारी तालीम की फ्राहमी में नुमाया किरदार अदा कर रहा है। जबकि तकरीब के इख्तिताम पर इदारे की मजीद तरक्की और तलबा की कामयाबी के लिए दुआ की गई। हैदराबाद में लियाकत कॉलोनी के करीब नहर से लाश बरामद हुई है, जिसकी ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंची और लाश को तहवील में लेकर पुलिस को आगाह किया। पुलिस के मुताबिक लाश की शनाख्त नहीं हो सकी, जिसे रेस्क्यू के जरिए जरूरी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू टीम का मजीद कहना है कि इलाका मकीनों ने नहर में लाश देखकर इत्तला दी थी। डीपीओ साहिवाल मोहम्मद उस्मान की ज़ेरे क़यादत साहिवाल पुलिस जराइम पेशा अनासर की सरकूबी में सरगर्म है। थाना हड़प्पा पुलिस ने मुकाबले में हाईवे पर वारदात करने वाले गैंग का मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया है। 3 डाकुओं ने शहरी से 911 अड्डा के करीब वारदात करके मोटरसाइकिल और नकदी वगैरह छीन कर फरार हुए। पुलिस को सामने देखकर मुलजिमान फरार होते हुए पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने लगे, जबकि मुमकिना मुकाबले के बाद साथी की फायरिंग से मुलजिम अहमद जख्मी हुआ, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मुताअद्दिद चोरी और राहज़नी की वारदातों में मुलव्विस था। उधर कमीर शरीफ में म्यूनिसिपल कमेटी कमीर की जानिब से तजावुजात के खिलाफ बिला इम्तियाज ऑपरेशन का सिलसिला तेजी से जारी है, जिसके तहत मार्केट रेगुलेटरी ऑफिसर की सरबराही में जिलानी मार्केट, बैंक बाजार, बांसावाला बाजार और सदर बाजार समेत पूरे शहर में भरपूर कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं। इस मुहिम के दौरान सरकारी हदूद से बाहर कायम गैर कानूनी धड़े, शेड्स और दीगर रुकावटें हटाई जा रही हैं, ताकि शहर की खूबसूरती, ट्रैफिक की रवानी और अवामी सहूलत को यकीनी बनाया जा सके। कमिश्नर हैदराबाद फयाज हुसैन अब्बासी ने वफ्द के हमरा लतीफाबाद नंबर 8 में कायम बचत बाजार का तफसीली दौरा किया। इस मौका पर चेयरमैन इमरान सोहरवर्दी ने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया है और उन्हें बाजार के मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा करवाया। इमरान सोहरवर्दी ने इंतजामिया को एशिया खुरोनोश की कीमतों, मयार और आवाम को दी जाने वाली रिलीफ के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी है। दौरे के दौरान सिक्योरिटी के इंतजाम का भी खास तौर पर जायजा लिया गया, ताकि शहरियों को पुरअमन माहौल में खरीदारी की सहूलत मुयस्सर आ सके। अफसरान ने I1 हैदराबाद की काविशों को सराहा और हिदायत जारी की हैं कि अवाम को रिलीफ की फ्राहमी में कोई कसर न छोड़ी जाए। शेखुपुरा में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक सीवरेज के दरीना मसले के मुस्तकिल हल के लिए नई सीवरेज पाइपलाइन बिछाने के मंसूबे का बाकायदा आगाज कर दिया डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा ने जिला सदर आरिफ खान संदेला के हमरा मंसूबे का इफ्तिताह किया और मौका पर ही काम का आगाज भी कर दिया। इस मौका पर ADCG नुमान डोगर, असिस्टेंट कमिश्नर इमरान अली और वासा डिपार्टमेंट के मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब के खसूसी अहकामात की रोशनी में शहरियों को दरपेश मसाइल के हल के लिए अमली इकदाम किए जा रहे हैं और सीवरेज का ये मंसूबा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में निकासियाब के मसाइल को मुस्तकिल बुनियादों पर हल करेगा। जिला सदर आरिफ खान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब के तरक्याती विजन के मुताबिक शेखुपुरा में बुनियादी सहूलियात की फराहमी हमारी तरजीह है। सीवरेज का मसला अरसा दराज से शहरियों के लिए परेशानी का बाइस बना हुआ था, जिसके हल के लिए आज अमली काम का आगाज कर दिया गया है। कोट राधा किशन के नवाही गांव में 15 साला बच्चे की लाश कमात के खेत से बरामद होने के बाद इलाके में खौफो हिरास फैल गया। मकतूल की शनाख्त मोहम्मद अफताल के नाम से हुई, जो 2 रोज से घर से लापता था। मजीद इस हवाले से जान लेंगे हमारे नुमाइंदे रियाज अहमद से। बिल्कुल नाज़रीन, हम सब मौजूद है कोट राधा किशन के नवाही इलाका नथुकी में, जहां पर एक दिलखराश वाकया पेश आया। 14-15 साला जो है बच्चा घर से निकला, लेकिन 2 दिन बाद तक उसका पता ना चला। उसकी वालिदा हमारे साथ मौजूद है, आइए उस हवाले से उनसे जानते हैं कि ये वक़्वा किस तरह पेश है। भाई वो आप ही रहे हो भाई, हमारा कितने दिन पहले का वक़्वा है ये? परसों तो भाई। बच्चे का नाम क्या था? अफजाल। उसके अब्बू का नाम? दीन मोहम्मद। परसों यानी कि 2 दिन पहले गया वो, तो आप लोगों को किस तरह उसके मुतालिक मालूम हुआ? बेटा हमने जाने दुकान पे है।
हमने जाने दुकान वन की अम्मी मैं दुकान पे जा रहा हूँ, मैं अम्मी दुकान पे हूँ बस। दुकान पे क्या लेने गया था वो? बेटा हमने अपनी परचून की दुकान है। कहाँ पे वो वाक़या है परचून की दुकान है जो आपकी? ग्राम में, गांव के अंदर ही? हाँ जी। आय अल्लाह। तो आप लोगों को किसी के ऊपर शक? हाँ जी। इस लाश के मुतालिक ये जो मिली है खेतों में आज, तो उसके मुतालिक आप लोगों को कहाँ से मालूम हुआ? कोई दुश्मन ना है, चिंगाड़न पे भाई हमारा शक है। अच्छा, ये जो पक्षीवास हैं इनके ऊपर आप लोगों का शक है, उनके ऊपर किस लिहाज से आप लोगों को शक है? हुन भाई जूती लबे वासु हमारे सट है, जूती लबे बस वासु सट है हमने। यानी कि उसकी चप्पल जो है वो पक्षीवासों के वहाँ से मिली है, तो पक्षीवास कहाँ चलेगी? अल्लाह जाने भाई। यानी कि वो यहाँ से जा चुके हैं, अल्लाह को तो भाई। नाज़रीन, जैसा कि आपने अम्मा जी की बात सुनी कि अम्मा जी का कहना है कि जी हमारा जो बेटा है वो 2 दिन पहले जो है घर से गया अपनी दुकान पे, उसकी परचून की दुकान थी, लेकिन वापस ना आया। इनका शक जो है पक्षीवासों के ऊपर शक है कि जी वहाँ से जहाँ पे उन्होंने बसेरा किया हुआ था वहाँ से उसकी जो है जूती बरामद हुई, यानी कि चप्पल उसकी जो है वहाँ से बरामद हुई, लेकिन अब जो है पक्षीवास वहाँ पे मौजूद नहीं है, वो वहाँ से अपना जुली बिस्तरा लेकर गायब हो चुके हैं। लिहाजा इन्होंने मरियम नवाज साहिबा से अपील की है कि जी हमारे जो बच्चा है उसके जो कातिल हैं उनको जो है जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। जी, इलाकाई बुलेटिन में वापस आएंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, अभी आपको बताएं 14 साला बच्चे के साथ ज्यादती का वाकया। कान्हा पुलिस ने दरख्वास्त मौसूल होने पर फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। एसपी मॉडल टाउन शहरबानो नकवी की जानिब से एसएचओ को स्पेशल टास्क दिया गया था कि एसपी मॉडल टाउन शहरबानो नकवी का इस मौका पर कहना था कि बच्चों का इस्तेहसाल करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। उकाड़ा में वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट एमसी जूनियर मॉडल हाई स्कूल में सदादे कूड़ा करकट मुहिम के हवाले से आगाही सेमिनार मुनक्किद किया गया। सेमिनार में सुथरा पंजाब तहसील उकाड़ा के प्रोजेक्ट मैनेजर वसीम अशरफ ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की और तलबा से खिताब करते हुए कहा कि साफ सुथरा माहौल सेहतमंद मुआशरे की बुनियाद है। उन्होंने तलबा पर जोर दिया कि वो न सिर्फ खुद सफाई का ख्याल रखें बल्कि अपने घरों और मोहल्लों में भी आगाही फैलाएं। उन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब शहरियों को साफ माहौल की फराहमी के लिए भरपूर इकदाम कर रही है, ताहम इस मिशन की कामयाबी के लिए अवामी ताउन नागुज़ीर है। खानपुर महर के करीब नौजवान ने बासर अफराद की मुबैना ज्यादतियों के खिलाफ एहतजाज किया। नौजवान का कहना था कि उसकी बरादरी के बाअसर अफराद ने उनका जीना दो भर कर रखा है। जाती दुश्मनी की बुनियाद पर उनके खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। पुलिस भी बाअसर अफराद के साथ मिली हुई है, जबकि मेरे घर को मसमार करके उस पर कब्जा कर लिया गया। मुतासरा नौजवान ने आला हुकाम से नोटिस देने का मुतालिबा करते हुए खसूसन DIG सखर और SSP घोटकी से अपील की है कि मामले की शफाफ तहकीकात करवा कर मुलव्विस बाअसर अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि उन्हें इंसाफ मिल सके। उधर शोरकोट में मुल्की सिक्योरिटी के पेश नजर तमाम इदारों को अलर्ट कर दिया गया है। THQ अस्पताल में भी सिक्योरिटी को मजीद बेहतर बना दिया गया। अस्पताल जराये के मुताबिक अस्पताल में दाखिल होने वाले हर शहरी को दाखिली दरवाजे पर अपना शनाख्ती कार्ड दिखाकर इंदराज करवाना होगा। तमाम शहरियों से भी अपील की गई कि अपना शनाख्ती कार्ड लेकर आएं। मरीज के साथ सिर्फ घर का एक ही फर्द आए। शबकलां के इलाका में तजावुजात की भरमार। माफिया बेलगाम मेन खानेवाल रोड पर रेडियां ठेले लगाकर रोड को तंग कर दिया गया। शहरियों का कहना है कि शाम के औकात में रेडियों की वजह से घंटों ट्रैफिक जाम रहती है। रोड तंग होने की वजह से पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। हमारा मुतल्लिका इंतजामिया से मुतालिबा है कि तजावुजात के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज।